In my last lecture, I gave you the format for the table in which we can record the literature review regarding our PhD thesis, and one chapter namely review of literature is to be inserted in our PhD thesis. So for that purpose, it is very essential and very beneficial for us to keep a record for the literature review we perform for the thesis, and this literature review will provide us, I think, more than 90% material for our research journey, like gap of the research, objectives of the research, and based on the objectives you can formulate the hypothesis, and hypothesis can be formulated with the help of variables, and these all these things you can get from the literature review. Variable the literature review will provide to you. Methodology which you are going to use for your research study, for your PhD thesis, will be provided by this literature review only. And the format of writing the research paper, any research article to publish in any journal, will be provided by the literature review. So once more I am sharing that table once again, and practically we will do how to perform the literature review. एक्चुअली मैं इस पर इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ कि दिस इज़ द वेरी, मतलब एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू. इफ लिटरेचर रिव्यू इज स्ट्रॉन्ग, then your we can say your research gap will be strong, and the significance of the study you will write will be strong, then objectives of the study will be strong, and after that variables and research methodology which you are going to use will be strong on the basis on the literature review. कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है पीएचडी को लिखना, बस ये है कि आपको एक आइडिया आना चाहिए कि हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड अर्लियर बाय द अर्लियर रिसर्चर्स, बाय द अर्लियर प्रोफेसर्स, and this is the new problem. So on the basis of earlier studies I can address this problem for a particular society or for a particular organization. बस यही पीएचडी थीसिस है. तो मैं फिर से एक बार आपके साथ में वो टेबल मैं शेयर करूँगा. जस्ट 1 minute, गिव मी some time to share it. From where it will go, just 1 minute. And what is a literature review format table? This one, like I think this one. Let me open. Yeah, this one. तो एक बार आप इसको फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 columns are there. A to G, 7 columns are there. First column is serial number, author in here, title of the study, then journal name, then research methodology, variables employed, and major findings. All this you have to write in the second chapter, generally second chapter of the PhD thesis. All this in your language, in your own language. तो मैं एक पेपर आपके सामने भी शेयर करूँ. दिस इज़ द टेबल, है ना, दिस इज़ द टेबल, यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर. दिस इज़ द टेबल. आप भी एक इसी तरह से कुछ बना करके रखिए. देखिए, अरेंज करके चलेंगे अभी से. अगर एम आई ऑडिबल और नॉट, मेरी आवाज़ आ रही ना सबको? ओके. तो अब देखिए, अरेंज करके आप चलेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है लाइक दिस. ये तो
कोई अरेंजमेंट नहीं है। मैं देखिए यहाँ पर मैंने अपना डी ड्राइव बनाया हुआ अपने सिस्टम में, आप देख रहे हैं, सी इट हियर, स्क्रीन भी विजिबल है ना, ये डी ड्राइव है मेरा, और डी ड्राइव में ये अरेंजमेंट मेरा यहाँ से इस तरह से रिसर्च पेपर करके मैंने डाला हुआ है। यहाँ आप देखिए, दिस वन इज़ रिसर्च पेपर, और इसको अगर मैं ओपन करूँगा रिसर्च पेपर को, तो आप यहाँ देखिए ये बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, सब मेरे स्कॉलर्स हैं जो अभी पीएचडी कर रहे हैं, आपके सीनियर। ये बुशरा है, ये ग्रीन प्रोडक्ट है, ये इसका नाम ही नहीं डाला मैंने, चलिए कोई नहीं। ये मेरा अपना रिसर्च का फोल्डर है, मैं जो कुछ खुद भी करता हूँ। और ये राजीव नारायण शर्मा जी हैं, और ये समीना करके हैं, ये 4-5 स्कॉलर्स हैं, इन सब के पेपर्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से एक पेपर मतलब आप क्या करें, पीएचडी थीसिस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएं, और उसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स बनाते चले जाएं, जो स्टडी भी आपको मिलती जाए वहाँ पर आप करते चले जाएं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्रीन प्रोडक्ट का एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर यू कैन सी इट हियर, ग्रीन प्रोडक्ट्स। अगर आप खोलेंगे तो ये ग्रीन प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टडीज़ इसमें आ गई हैं, ये सब स्टडीज़ ग्रीन प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये वो स्टडीज़ हैं जो कभी कभी प्रॉब्लम आती है स्कॉलर्स को, तो मैं उनके लिए स्पेशली फाइंड आउट करके और फिर भेजता हूँ। बाकी उनके पास तो 50-60 से ज़्यादा स्टडीज़ होती हैं, यहाँ तो बहुत कम आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये इस तरह से अरेंज करके चलिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं रिसर्च पेपर में जाते हैं, और यहाँ से एक पेपर मैं आपको उठा देता हूँ, कोई सा ये पेपर, एक पेपर को हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू रिकॉर्ड द लिटरेचर रिव्यू। इसको निकालेंगे 10 ओपन विथ गूगल क्रोम, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है, इज इट विजिबल और नॉट? आप लोग मोबाइल पे हैं कि सिस्टम पे हैं ये बताइए। लैपटॉप है तो दिखना चाहिए फिर तो साफ साफ। मैं थोड़ा सा, हाँ ओके। तो देखिए ये एक स्टडी है, टुडे वी विल डू दिस स्टडी। मतलब हम किस तरह से किसी भी आर्टिकल का जो मतलब लिटरेचर है, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, मैं आपको इस पेपर के थ्रू बता रहा हूँ। आपको इस पेपर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसके आर्टिकल को ही देख लीजिए। ये सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ, ये क्या कहते हैं इसको, ये क्या होता है, ये टाइटल होता है, ये टाइटल। ये देखिए यहाँ पर हमने ये, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको भी बड़ा कर देता हूँ। देखिए दिस वन, टाइटल ऑफ द स्टडी। तो सीरियल नंबर तो आप डाल ही लेंगे। सबसे पहले ऑथर एंड ईयर यहाँ डाल लीजिए। सब कहाँ गया, मैं इसको, ये आ गया। देखिए ऑथर एंड ईयर। ऑथर इसका ये है शिगेकी ओनो। तो मैंने आपको लिखना भी बताया था किस तरह से लिखा जाता है। ओनो लेते हैं, लास्ट नेम इज़ टू बी टेकन, और उसका जो फर्स्ट नेम है उसका पहला लेटर लेकर के लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ओनो और एस। और ये स्टडी देख लीजिए कौन से ईयर में पब्लिश हुई है। तो कहीं ना कहीं लिखा होगा यहीं पर, देखिए ऊपर अवेलेबल ऑनलाइन कहीं, रशियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको ढूंढना पड़ेगा तो ये मिल जाएगा। देखिए दिस वन, ये है स्टडी 2017 की है, 2017 की स्टडी है ये। तो हमें ऑथर भी पता चल गया है और 2017 इसका ईयर भी पता चल गया। तो अब ये हम वहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। जस्ट 1 मिनट, समबडी इज़ कमिंग, मोहित जी इज़ कमिंग। बहुत लेट है साहब, चलिए कोई नहीं। तो कहाँ गया पेपर, दिस वन, ये रहा। तो अब देखिए इसका जो ऑथर है वो आप देख रहे हैं कि हम लास्ट नेम लेते हैं ओनो, और फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर लिखते हैं कैपिटल में। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ओनो एस, और यहाँ जाएंगे दिस वन हेयर ओनो, और इसको आप यहाँ कॉमा लगा करके, कॉमा लगा करके आप यहाँ पर और लिखेंगे एस, ओनो एस। और इसकी स्टडी का ईयर भी डाल दीजिए। क्या ईयर था, 2017।